the concept of circles and the P4 questions. So the first question we have is a trigonometry and a circle combination. So we can perform this question a bit later. So let's see something interesting here for a while, just for the beginning of the class. Okay, let's see. We have this question in front of you. Okay, please pay attention. According to the examiner, it says that ABP are points on circle with center O and angle OBA is 38. OBA is 38. So, but you can see that I can extract this triangle outside, which is inside. That point is A, that point is O, that is B. We know that O to B and A to O is the radii of the circle. So if this is 38 as mentioned in the question, so that would be also 38 because of isosceles property. So the center angle would be 180 minus these two. So the examiner is asking find angle APB. So A, P, and B. So examiner is asking me this angle. Okay, so just give me a second. So let's find out the center angle first of all. So beta 180 minus 38 is how much? Angle AOB is equals to 180 minus 38 minus 38. Beta ये कितना आ रहा है? 3076. So 104. 104. Okay, that is 104. Okay, this angle is 104. So you can see that this angle is 104. So we need to find out this P angle. So now listen to me. This is the start and end. See, start and ending is same. So it means that angle P would be the half of 104. So angle P means that angle B, P, and A, which is the requirement of the question, that would be 104 divided by 2, that is equals to 52 degrees. Understood, everybody? Understood, everybody? Yes, sir. Okay, proceeding. Now look at part B, beta. According to part B, beta, I can see that it's a tangent and it's an alternate segment theorem. That is pretty visible to me. So now I'm gonna just mark it here just for the sake of clarity, that this is alternate segment theorem. So if this is 50, so this 50 is opposite here. Now you can see that it is an isosceles triangle. F to C is equals to F to E. So this is 50. So that is automatically 50 as well. So this would be 50 plus 50 is 100 and the remaining angle would be 80 because of the triangle property. Okay, now we can see that it is a cyclic chord here. And what is a cyclic chord? According to the examiner is saying find angle EFC. E, F, and C. The requirement is 80 degrees. It is done. CDE. CDE is this angle, and you can see that it is a cyclic chord. 1, 2, 3, 4 vertices touching the circumference of the circle. So angle CDE is equals to 180 minus 80. So the answer would be 100 degrees. So that would be 100 degrees. G, understood everybody? ये माइनस CD क्यों किया सर? बेटा cyclic chord के अंदर ये होता है कि sum of the opposite angles equals to 180. That is the reason. Okay, sir. This is the cyclic chord property. Okay. Now Sir, that is the जी बेटा ये हमें किस तरह पता चलेगा एंगल FEC 50 का है एंगल EDC 50 का है? कौन सा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल FEC ओके 50 का ओके होगा ओके या एंगल EDC? ओके अब ये जरा समझ डालें थोड़ा सा प्लीज। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। मैं जरा थोड़ा शेडर को मैं जरा थोड़ा सा इंटेंस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आए सबको। प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? ओके नाउ बेटा प्लीज सी दैट दिस इज alternate segment here and this is alternate segment here. We know that 50 plus 50 is 100. That outside would also be 80. Agree or not? And can you see that that is opposite 80? Can you see that? देखिए बेटा ऑल्टरनेट सेगमेंट इसको कहते हैं। देखिए ये नीचे वाला सेगमेंट है ना, ये नीचे वाला सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट में बना है। देखो ये सर्कल का माइनर सेगमेंट का एरिया है एंड दैट इज इनसाइड द मेजर सेगमेंट। गॉट इट? तो ओके EDC गलत है फिर। क्या चीज? EDC 50 नहीं हो सकता? ईडीसी 50 नहीं हो सकता बेटा। ईडीसी 50 क्यों नहीं हो सकता? ईडीसी आपके सामने 100 आया है ना। जी सर।
अब देखो जरा, ये देखें, एक अच्छा सवाल और एक अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। जरा देखें प्लीज, क्या ये ट्रायंगल आपके सामने नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है? अब इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट ये है 50 + 50 100, और अभी हमने देखा है कि एंगल डी 100 आया है। सही सही समझ आ गई। देखा है आपने? जी सर। ऑलराइट, ओके। सो ये इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये मेंसुरेशन पे है, तो हम सर्कल्स कर रहे हैं थोड़ा सा आज, तो सर्कल्स वालों पे फोकस करेंगे। ऑलराइट, look at this question beta. I can see that again, I can see an isosceles triangle inside. मुझे एक isosceles triangle फिर नजर आ रहा है, और isosceles triangle के लिए let's see के what I can do. I can just shade this one like this. All right, so 180 minus 124. So beta 180 minus 124 is how much? 56. जी सर। So now 56 divided by 2, 28. जी So let's plot that 28 here. 28, and that is also 28. Now see, I can get angle A very easily. Why? Because it is a cyclic chord. A, B, C, and that is C to D. It's a cyclic chord. So Rahman, beta, this plus this is 180. Got it? So 180 minus 35 minus 28. So 180 minus minus is plus. 35 plus 28 is how much? 35 plus 28 is how much? 63। 843, 63. So 180 minus 63 is 117. जी So this angle is 117. Let's see what is the demand of the question. Work out angle CBD. Okay, C, B, and D. Okay, we need to get this angle. So this angle would be the half of 124. So 124 divided by 2, that is equals to 62. 62. And the reason is because angle at a circumference is half of angle at center. Angle at center. Work out angle BAD. BAD, we got this everything right now in front of you. So we can copy this working here. We can copy this working. Okay, let me pick this one here. That's fine. एक एंगल का निशान भी आ गया साथ, लेकिन कोई बात नहीं जी। समझ आएगी बेटा सबको? तो एंगल BAD is 117. Angle BAD is 117 because 180 minus 35 minus 28, property of cyclic chord. Property of cyclic quadrilateral. Quadrilateral. Got it? Got it, bacha? Understood? Yeah. Proceeding. Let's see. Again, we have circles. Okay, so let's proceed the question. Okay, I can see that they say that S2Q is a diameter. I can see that. Why I can see that? Because I can see very clearly that this O is the center of the circle. So if this is the center of the circle, so that is automatically this is angle in a semicircle, which is 90 degrees. And now you can see that very clearly that this is in the shape of star, and where that star is, this is the star. See? And this is angle in the same segment. Why? Because this is the minor segment. So the upper segment is the major segment. So angle in the same segments, they are equal. So that would be also 42. So this would be 42. So if this is 90 plus 42, so this angle can be how much? It is 48. It is 48. Okay. Now let's see what is the demand of the G beta. वो 42 क्यों होगा? बेटा ये 42 इसलिए होगा कि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, ये और सॉरी ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल इन सेम सेगमेंट है। अब जरा समझ डालें थोड़ा सा यहाँ पे, ये सेंटर है, ये रेडियाई बन गए दो। अब आई एम गोना स्टार्ट अ लाइन, हिट द सर्कमफ्रेंस, कम बैक, start the line, hit the circumference, come back. Whatever these angles are, they all are same, and they are half of this angle as well. If this is 2x, so that would be x each. Got it? Yes, sir. Okay, any problem?
All No, right. sir. All right. Now, beta, this they are saying that calculate the circumference of the circle. Okay, circumference of the circle. I can see that I have one length available, which is P to Q. So let me extract this right angle triangle outside and do name it. Okay, S Q P. P to Q is 5.9 centimeter. This is 90 degrees. This is 42, and this is 48. So this is the diameter of the circle. Let's find SQ. So SQ divided by sine 90 is equals to PQ, which is 5.9 divided by sine 48. So SQ is equals to 5.9 divided by sine 48, and sine 90 is 1. So that is the reason I'm not taking it. So SQ is what, beta? Tell me. SQ is how much? 7.94. 7.94. This is the diameter technically. So we need the radius. We need the radius. So we know that circumference of the circle is 2 pi r, and the value of r would be 7.94 divided by 2. So I can cancel 2 and 2 here because this is the half of the diameter. So can you please tell me what is the answer? 7.94 pi is how much? 7.94 is 94 pi is how much? 24.9. 24.9 is the final answer. Thank you so much. So I hope this question is clear. If any one of you have any question, you can just ask me, or if you want me to read the chat box, I can read as well. But if you can better open your mic and you just ask me a question, that would be very much easy for me as well. Any problems so far? Proceeding. All right. Look at the question, everybody. Again, I can see that very clearly it's center. Okay. So let's connect with the arcs now. Okay, I can see that this is my arc thing. Okay, now wait a minute. I can see that I have another triangle in business. But Alina, beta, turn off your mic. A to D, D to C. So mera beta, I can find out the third angle in this triangle with minusing. Agree? So 180 minus 128 minus 28. So that would be how much? That would be how much? 24. 180 minus 156. So the answer would be 24. So let me write here 24. Okay, now you can see that very clearly. But listen to me very carefully. That if this angle is 128, so that angle is at the center, it would be double. It would be double. So double of 128 is how much? It is 256. Agree, everybody? So let's find out this angle. So what is this angle? 360 minus 256. So this angle would be, let me take this out. 360 minus 256, so 104. So this is 104. This is angle at the center. So now this angle would be the half of this one, which is 52 degrees. So now I can get this angle as well. This is also a triangle. So 180 minus 104, and then answer divided by 2. So 180 minus 104, that is 76. 76 divided by 2 is how much? 38. So that would be 38 and that would be 38. So let's see what is the demand of the question. Okay, show that obtuse angle AOC is 104. So it's shown. You can see that AOC is already there. So we have to give you a reason for each working. So whatever we did. So first of all, we have to give the reasons. First of all, we got 24. Agree? Okay, 104 is not linked with 24. So angle AOC, the reflex one, would be the double of 128, which was 256. Then the greater one, obtuse angle AOC would be 360 minus 256, which was 104. That was the working required for this working. Now they say that calculate angle BAO. So B, A, and O. Okay, that is not yet done. G Hamad, you have any question? Sir, angle 256 किस तरह है? बेटा 256 इस तरह आया है. देखो अभी इधर समझ डालें जरा. थ्योरम है, देखो ये 256 कैसे आया है. देखें यहाँ पे सर्कल, सेंटर, रेडियाई. Okay, now hit and let's come back. Okay, now check.
We know the theorem that if this angle is 2x, so that would be x. Do you agree with me or not? Yes, sir. So same scenario, if this line hits here, so if this angle is, for example, y, so that would be 2y. Got it? Got it? Yes, sir. Okay. Now they say that calculate angle BAO. So BA and O. So okay, we need to get this one little part. Okay, let's extract this blue thing outside. So 1, 2, 3, 4. Okay, that would be 256. This is 52. And this is 30. So we can get this angle by subtracting this from 360 because 1, 2, 3, 4, it's a quadrilateral. So 360 minus 256 minus 30 minus 52. So what is the answer, beta? What is the answer? 22. It is 22 degrees. All right. So then they say that calculate angle A, B, and D. So A, B, and D. Okay, A, B, D. We have two angles here. So angle ABD is this one angle. So this is right in front of you, angle A, B, and D. So we need to get this one little part. So this part is the requirement of the question now, ABD. So A, B, and D. So let's see what we can do in this part. Anyone having any idea? Okay, I have the idea here. Why? Because like, for example, it's not like that I'm the teacher. So that's the reason I have the ideas here. So beta, I can see that very clearly that this triangle and this triangle, they are similar triangles. Do you agree with me or not? Beta, do you agree with me or not? Beta, do you agree with me or not? Yes, sir. कैसे Yes, पता Okay. sir. चलेगा? जी बेटा, कैसे पता चलेगा? बेटा ये आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये किसी खास रेशो के जरिए आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता अब्दुल्ला? सर आता है। अब मैं देखें आपके सामने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट जरा बाहर निकाल रहा हूँ, ACDB वाला ये क्रॉस है। अब जरा समझ डालें थोड़ा सा, ACBD कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने छेड़ रहा हूँ। नाम है ABDC, ABD एंड C। ओके, C पे एंगल है 28। तो जब ये एंगल बेटा 28 है तो ये एंगल भी 28 होगा, क्योंकि हमने सिमिलैरिटी में ये चीज पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। ओके, तो अब ये याद रखें कि जो ये ग्रीन पार्ट है ये हमारे पास 28 आया है, तो हम 52 नहीं लिखेंगे, 52 तो पूरा है, तो दैट पार्ट इज 28 डिग्री। सो वी विल राइट हियर आंसर एज 28 डिग्री। दैट इज द रीजन ये 1 मार्क का है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेम एंगल ही है जो 28 सामने लिखा हुआ है। करेक्ट? यस सर। ऑलराइट, प्रोसीडिंग। Okay, now they say that the radius OC of the circle is 9.6 centimeter. Calculate the total perimeter of the sector OADC. Okay, OADC is the sector. अब देखेंगे क्वेश्चन काफी जरा इसमें OA, एक मिनट जरा देख लूं मैं, OADC। ओके, इस सेक्टर के बारे में हम लोगों ने बताना है। तो बेटा ये सेक्टर आपके सामने मौजूद है। ये सेक्टर जो मैं आपके सामने बना लेता हूँ, A to O एंड AOC। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा। सेक्टर है ये वाला A O, नाम देने जरूरी हैं, C and D, C and D point is right here. This was 104 degrees. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, and the radii of the circle is 9.6 centimeter. So perimeter निकालना है, तो that is also 9.6. Let's find out the arc length. So A to C arc length is equal to theta divided by 360 multiplied by 2 pi, and R is 9.6. Can you please tell me what is the arc length? And perimeter is 9.6 plus 9.6 plus answer. What is the answer of the arc length, beta? What is the answer for the arc length? 17.4. 17.4. Can you please add this with that, these two? So that would be the perimeter. 36.6. 36.6 centimeter is the perimeter. 36.6. All right, beta. Now look at this question. The diagram shows two mathematically similar solid metal prisms. The volume of the smaller prism is 68. So that, let me write here, V is equals to
648. Okay, and the volume of the larger is that V is equals to 2187. The area of the cross section of the smaller prism, area of the cross section of the smaller prism is 36. So that area is unknown. Calculate the cross section area of the larger prism. So beta, we have the formula for that, which is cube root of V1 divided by V2 is equals to square root of A1 divided by A2. So the सर जी requirement, जी बेटा, सर ये अगर क्रॉस सेक्शन की जगह पर एरिया की लिया जाए सर जी फिर भी सही है सिर्फ एरिया की लिया जाए फिर भी ये वाला फॉर्मूला हाँ ही फिर होगा भी उन्होंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो क्योंकि रेशियो एनालिसिस है ना, समझ आई? ओके 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 ओके, अब देखें जी, A1 इज whatever is unknown, I will name them 1 1. So A1 V1, that would be V2 and that would be A2. Subject making easy होता है. So cube root of V1 is 2187 divided by V2 is 648. That is equals to square root of A1. A1 is unknown. Okay. And square root of जी बेटा A2 is 36. So beta, square root 36 is 6. So we will write this in calculator that 2187 divided by 648 multiplied by 6 is equals to square root of A1. Better tell me what is the answer from the left hand side. Tell me what is the 9. answer. Square root A1 is equals to 9. So taking square on both sides to get A1. So A1 would be 81, which is logically correct answer. Why? Because it is greater than 36. Got it, everybody? Got it, everybody? Yes, sir. Sir, Okay. Yes, Now, sir. now the question it's saying that the larger prism is melted down. Okay, how it can be melted down? Like for example, better try to understand this scenario. Okay, I'm gonna like for example ना I'm gonna make a candle here, something like that. और अगर इसको मैं heat करूंगा, so what will happen? This prism will melt down. ये melt होना शुरू हो जाएगा. अब ये melt हो गया तो इसका मतलब है कि इसका volume जो है वो same रहेगा. कहता है कि volume of the calculate the radius of the sphere. So first of all, let's find out the volume of the larger prism. We have the volume which is equals to 2187. It will remain same. ठीक है? Remains same. Volume same रहता है जब भी आप किसी भी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं. Calculate the radius of the sphere. It means that सर 2187 जी is ये equals to, प्रिज्म से स्फीयर का कहाँ से आ गया सर प्रिज्म देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि लार्जर प्रिज्म इज मेल्टेड डाउन. इस बड़े वाले प्रिज्म के नीचे इन्होंने आग लगाई है, इसको मेल्ट कर दिया है. गॉट इट? ओके 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 मेल्ट करने के बाद उन्होंने उसी मेल्टिंग से उन्होंने स्फीयर बना लिया है. गॉट इट? तो इसका मतलब है वॉल्यूम सेम रहेगा. तो इसका मतलब वो कहता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो 4/3 पाई आर क्यूब. सो लेट्स फाइंड आउट आर एज अ सब्जेक्ट. तो 4/3 पाई वहां पे जाके हो जाएगा 3/4 पाई. तो ये हो जाएगा 2187 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई is equals to r cube. Now taking cube root on both sides. So take the cube root of on the left side and tell me what is the answer for the radii of the sphere. Tell me what is the answer. Everybody, tell me what is the answer. 8.05. 8.05 is 8.05 centimeter is the answer. Like for example, हमाद अब समझ आइए कि मैं अभी आपके सामने एक स्फीयर बना रहा हूँ. देख रहे हैं? जी सर. इसका रेडियस है 8.05. इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया, उसको मेल्ट करके उसकी शेप चेंज की है. गॉट इट? यस सर. ओके, प्रोसीडिंग. मेक पी द सब्जेक्ट. ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, चलो कर देता हूँ आगे. मेक पी द सब्जेक्ट. पी को बॉस बनाना है तो पी जो है वो यहाँ पर है. ये +7 हो रहा है तो +7 यहाँ पे ले जाओ पहले. तो ये -7 हो जाएगा. अब डिवाइड बाय 5 कर दो तो P इज इक्वल टू m-7 डिवाइडेड बाय 5. ये आपका P बॉस बन गया, सब्जेक्ट बन गया. यहाँ पे भी वो कहता है P को सब्जेक्ट बनाओ तो पहले P के साथ 2 अटैच है और P स्क्वायर भी है. तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि y स्क्वायर -h कर रहा हूँ ताकि ये 2P स्क्वायर वहाँ पे जाके प्लस में हो जाए. डिवाइड बाय 2 पहले करेंगे. डिवाइड बाय 2 किया हमने. हमारे पास बन रहा है P स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर -h डिवाइडेड बाय 2. अब हम ले लेंगे एक स्क्वायर रूट दोनों साइडों पर ऐसे.
तो p is equals to square root of y square minus h divided by 2. So that would be the final answer. Easy, everybody? Easy? Yes, Yes. sir. अच्छा जी, देखें जी, इन्होंने वेक्टर के साथ जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से सर्कल बनाने की कोशिश की है, तो जरा लेट्स चेक कि क्या कह रहे हैं। कि कहता है बेटा O to A एज अ कॉलम वेक्टर। तो बेटा O to A एज अ कॉलम वेक्टर, तो बेटा O से गाड़ी स्टार्ट करें, A तक जाएं, तो देयर इज नो लेफ्ट राइट मूवमेंट। So, but we have to go 5 up. So 0, 5 is the vector of OA. Okay, A to B vector. So we have to go this way. So here it is 0 and here it is -3. So I have to go 3 towards left. Okay. And then it is 5 and that is 4. I have to come 1 down. Got it, everybody? 3 left and 1 down and 1 down. बेटा समझ आ रही है सबको कि नहीं यार? ऐसे ही लगा मुंह में। जी सर आ रही है। Yes, sir. Yes, आ sir. रही है सर। हाँ ना मेरा बेटा, ऐसा ना हो कि बेटा मुझे ऐसा लगे कि मैं ऐसे ही अपने साथ लगा हुआ हूँ, तो फिर दुख होगा, क्योंकि मैं काफी इधर एफर्ट कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो टायर्ड। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। ओके, ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल। बेटा कहता है कि ए और बी सर्कल पे लाई करता है विद अ सेंटर ओ, और ओ इज द सेंटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। हमें ए टू बी का आर्क बताना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। अब जरा समझ डालें कि इसका मतलब क्या है। हमाद, आपको क्वेश्चन की समझ आई है? मनाहिल, मनाहिल तुम्हें समझ आई है क्वेश्चन? जी सर आई है। चलो अब जरा एक्सप्लेन करो मुझे, अगर समझ आई है तो। सर मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत श्योर है पीछे। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये कहता है कि ए एंड बी दे लाई ऑन अ सर्कल। समझ आई? जी इसका जी। मतलब है ये बी है और ये क्या है बेटा, ये ए है। एग्री? ये कहते हैं ये सर्कल पे लाई करता है और ऑन अ सर्कल एंड सेंटर इज ओ। और सेंटर क्या है बेटा? ओ। सेंटर ओ है। तो सेंटर ओ जो है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। समझ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ओके, एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। हमें ए टू बी का आर्क की लेंथ बतानी है कि वो कितनी है। समझ आई? हम लोगों ने ए टू बी का डिस्टेंस नहीं बताना, हमने आर्क की लेंथ बतानी है ए टू बी की। समझ आई? सो फर्स्ट ऑफ जी ऑल सर। वी नो दैट वी हैव ओ टू ए एंड वी हैव ओ टू बी। गॉट इट? गॉट इट? यस। So if O to A, we can see that very clearly that O to A is O to A is 5 units. Yes or no? Yes. What about B to O? That would also be 5 units. Agree? Agree? यस Yes. सर। Yes, Okay, ये sir. भी नो 5 सर, यूनिट नो होगा। सर, अच्छा सर बेटा, मैं नहीं आर्क एग्री लेंथ। करता। अब एक आर्क लेंथ के लिए वी नीड एंगल एज वेल। हमें एंगल की जरूरत है। अब वो बेटा एंगल हमें कहां से मिलेगा? जी बेटा ऊपर एंगल हमें वाला कहां से सर, ये अगर हम एक्सट्रैक्ट करें ऊपर एक आर्क लाइन बनता है ना सर जी। किधर बनता है? ऊपर वो सर्कल में देखिए सर, अगर अब ये देखें जरा, यहाँ पे थोड़ा समझ डालें। हम ए टू बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या कोसाइन करेंगे? रूल से भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, हम फाइंड आउट करेंगे ए बी डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करेंगे ए बी डिस्टेंस। बेटा? एग्जामिनर हमें ए बी चाहिए, और ए बी निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सो ए टू बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले ए का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट है बेटा 0, 5, और बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3 और 4। ठीक है? सो y2 minus y1, तो विच इज 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर। So square root -1 square is 1 plus -3 square is 10. Yes or no? Plus 9. So that would answer would be square root 10. ठीक है बेटा? Understood? That this length is square root 10. Now the demand of the जी question सर। is, the demand of the question is बेटा find the arc length AB. Agree? हमें आर्क लेंथ ए बी फाइंड आउट करनी है, एंड आर्क लेंथ वी नीड द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला ऑफ द आर्क लेंथ वुड बी थीटा डिवाइडेड बाय 360. यस और नो? सो लेट्स फाइंड आउट दैट थीटा। हमें इस थीटा को पहले फाइंड आउट करना है। वी हैव 3 साइड्स, हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद हैं। तो लेट्स फाइंड आउट यूजिंग कोसाइन रूल। सो थीटा वुड बी, अभी कोसाइन, क्योंकि देखें 6 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, तो आपको थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो लेट्स फिर यहाँ पे कर लेते हैं। जी बेटा।
सर 5 बोथ साइड्स पे कैसे आएगा? बेटा ये बोथ साइड्स पे इसलिए आएगा क्योंकि रेडियस है ना बेटा, ए टू ओ जब 5 है तो ओ टू बी भी 5 ही होगा ना यार। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक है, और ये भी ऑब्वियस सी बात है यार, देखो ये 3 लेफ्ट आ जाओ, 4 अब चले जाओ, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो, 5 ही आता है। ठीक है, यस सर। तो इस चीज का खुद थोड़ा ख्याल रखें, कॉन्सेप्चुअली टाइट होना चाहिए आपको। ओके, कोसाइन रूल, सो स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स, कॉस थीटा, हम थीटा निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, 10 माइनस फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। टेक कैलकुलेटर में डालें बेटा, एंड टेल एंड टेक आंसर, कॉस इनवर्स भी ले लें, कॉस इनवर्स आंसर, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स आंसर। चलें जी, हानि आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके जी, 36.9 कितना आ रहा है? 36.9 36.9 डिग्रीज इज थीटा। अब ये हमारे लिए पीस ऑफ केक है कि हम लोग इसका जो है आर्क लेंथ जो है वो निकाल लें। तो इसलिए बेटा बेटा याद रखें, हर चीज़ जो है ना इजी नहीं मिलती लाइफ में। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, तो ये वो एफर्ट है जो आपको करनी है। ठीक है, जब आपने ये काम कर लिया, अब देखिए मैंने वर्किंग वहाँ पे की थी, मैं इसको ड्रैग करके लेके पेपर में आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास तो पेपर में आईपैड तो नहीं होता। तो अब हम निकालते हैं आर्क लेंथ। Arc length is theta by 360, so 36.9 divided by 360 multiply by 2 pi and the radius is 5. Now tell me what is the arc length AB? जी 3.22 3.22। 3.22 अब क्वेश्चन में मेरा बेटा यूनिट कौन सा लगाएंगे हम लोग? जी सिर्फ यूनिट्स लिख दे। यस, हम लिखेंगे 3.22 यूनिट्स। ठीक है, हमें नहीं पता ये सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या चीज़ है, डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। गारन अंडरस्टूड? यस सर। ऑलराइट, देखें जी, पैरेलल लाइन थ्योरम्स आ रहे हैं आपके सामने। ये तो बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। पी, तो पी वुड बी इक्वल्स टू 180 माइनस 48। 180 माइनस 48 इज हाउ मच? 132 132, एंड दिस वुड बी आल्सो 48 वर्टिकली ऑपोजिट, सो पी इज इक्वल्स टू 132, एंड क्यू निकालने के लिए 180 में से दोनों को माइनस कर लें। 180 माइनस 55 माइनस 48, ये कितना आ रहा है बेटा क्यू? 77 77 डिग्रीज। बेटा आप में से अगर किसी को समझ ना पड़े, मेरा बेटा जरा माइक ऑन करके जरा पूछ ले ये करे, ठीक है? Okay, the angles of the quadrilateral are x degree, x plus 5 to x minus 5 and x plus 10. Find the value of x. We know that in quadrilateral the total is 360. So 360 is equals to x plus 5 plus 2x minus 25 plus x plus 10. Okay, so see how many x are there? 2xx, 4x, 5x, 5x, 5 minus 25 is negative 20, and negative 20 plus 10 is negative 10. So minus 10 will go there, plus 10, 370 divided by 5 on both sides. So 370 divided by 5 is how much? 74 74. So x is equals to 74 degree. A regular polygon has to 72 sides. Calculate the size of an interior angle. बेटा ये इंग्लिश में ख्याल रखना जरा, ये सिंगुलर लिखा हुआ है, तो वन इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है आपके पास n minus 2 multiply by 180 divided by n. तो 72 minus 2 multiply by 180 divided by 72. So what is the answer? 175 175 degrees. ओके, अगर एग्जामिनर पेपर में पूछे कि व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय n, तो 360 डिवाइडेड बाय 72, तो आपके पास आंसर आएगा 5। आएगा 5 कि नहीं? यस सर। ये क्यों आएगा? बिकॉज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इक्वल्स 180, ये हमारे पास 175 आ चुका था, तो ये ऑब्वियसली 5 आना था। गॉट इट? लेकिन हमारा आंसर ये है, ये मैंने एक्स्ट्रा किया है, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा सॉल्यूशन किया ताकि आपके पेपर में शायद ये भी आ सकता है। गॉट इट? हो समझ आइए बेटा सबको कि नहीं? जी सर। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में खराब करने वाला हूं आप लोगों का, लेकिन जरा रेडी रहिएगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले जरा देखो बेटा, फिर वही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की शक्ल नजर आ रही है मुझे, नजर आ रही है सबको कि नहीं? जी सर।
Yes, ये sir. बन रहा है v, ओके, यस और नो, जी सर. समझ आ रही है? सर जी ओके, सर जी सो ये सामने बनेगा बेटा, v की वैल्यू आएगी 60। बस बेटा सब नहीं बोलने की जरूरत, सारे यस सर शुरू कर दिए, पूरी दुकान खोल दी मेरे लिए यहाँ पे 60 डिग्री। ओके चलो जी, कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा जी, सर अब जरा W आराम, भी 60 होगा। बिल्कुल W भी 60 होगा। क्यों 60 होगा बेटा, W बताएं जरा अब। सेम सेगमेंट। वेरी गुड, जबरदस्त। तो W इज ऑल्सो 60, तो ये भी 60 होगा। ओके, क्या ये X डबल नहीं होगा 60 का? यस सर। तो X इज डबल 120। अच्छा देखो भाई, ये क्या, ये दोनों रेडियाई नहीं है सर्कल के, तो 180 माइनस 120, तो ये आ रहा है 60। 60 को दो पीस में तोड़ दो तो आएगा 30। एग्री और नॉट? तो U आ गया बेटा 30 जी। अब एक ही रह गया मेरे ख्याल से, Y रह गया। Y किधर है? Y यहाँ पर है, 120 है। Y 20 है। अच्छा ये तुमने 20 कैसे निकाला है? Y 20 कैसे निकाला है? तो कल नहीं तवक्कल नहीं ना बेटा, तवक्कल नहीं करनी बेटा, सर ये दिमाग याद। इस्तेमाल करके। अच्छा चलो, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है कि शुक्र है कि दिमाग काम करना शुरू कर दिया माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। लेकिन पहले ये ज़रा समझ डालें कि ये जो 20 डिग्री आप बता रही हैं बेटा, ये 20 डिग्री यहाँ पर है, तो ये 20 डिग्री आपका मेरा बेटा यहाँ पे होगा। समझ आ रही है? जी सर. ओके, अब हमें ये पता है बेटा कि यहाँ पे ये जो टोटल, ये क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो ये एंगल D 90 होने 40 वाला है। होगा भाई। तो 90 में से ये दोनों माइनस होंगे, तो तब आंसर आएगा y का। तो y का आंसर आने वाला है 90 माइनस 20 माइनस 30, तो आंसर आ रहा है 40 डिग्री। ठीक है, सो ईशा गुड ट्राई, लेकिन कोशिश ये करा करो, देखो ये स्टार्स बनाने बड़े जरूरी हैं। अच्छा सर जी, ये 90 कहाँ से है? बेटा, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है ना यार, जी सर। आपको ये पता है कि नहीं? जी बोल रहे हो? हाँ पता है सर। ओके, अब ये देखें भाई। ओके, अब देखें जी, ये आपको समझ आने वाली है अभी, क्या नाम है आपका, रहमान। जी सर। देखें जी, सेंटर, रेडियस, ओके, नाउ दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज एंडिंग, सो लेट्स हिट and let's go back. See, it's 5x, so that would be double 10x. Got it? So find the value of x. So 10x plus 3x plus 22 is equal to 360 because angle at a point is 360. 10x plus 3x is 13x. 22 वहां पे जाएगा तो 360 minus 22. 13x is equal to 360 minus 22 is how much? 348. 338 or 48? 38 सर। 38 sir. 38. Be careful. So 38. divide by 13 on both sides. So x is equals to how 26 much? X is equals to 26 degrees. Got it? ओके, अब देखें जी, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आ गया है, और ये जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो काइंडली प्लीज जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, ये अब्दुल्ला कहाँ गया? अब्दुल्ला, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गौर कर बच्चे, ये देखें जी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है कि नहीं, हम बाद में डिबेट करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आपको ये इसमें दो पैरेलल लाइनें नजर आ रही हैं? जी आ पैरेलल रही लाइनें है। नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है करार कि ये जो एंगल है वो यहाँ पर है ऑल्टरनेट। समझ आई? Yes sir. और करार ये जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर है। समझ आई? Yes sir. ओके, ये ग्रीन कलर से मैंने इसलिए मार्क किया ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी आसानी हो थोड़ा समझने में। ठीक है, ग्रीन के ऑपोजिट जो साइड है वो ये वाली है, और यहाँ पे ग्रीन के ऑपोजिट साइड ये वाली है। अच्छा, ब्लू के सामने जो साइड है वो ये है, और यहाँ पे ब्लू के सामने जो साइड है वो ये है, और थर्ड साइड तो सबको क्लियर है। कहता है यूज सिमिलर ट्राइंगल टू कैलकुलेट dx। जरा बेटा dx देखना क्या है। dx ये है, dx डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि नीचे वाला करस्पॉन्डिंग वो है। ओके, 5 और 10 ले सकते हैं, सो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो डबल हो रहा है मेरे ख्याल से। तो dx इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8, सो dx इज इक्वल टू 8 5 आर 40, 40 डिवाइडेड बाय 4 is 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू व्हाट? 4 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको आपको मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी, आपको अगर आपको याद हो, बेटा याद है किसी को कि नहीं? यस सर।
बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि स्केल फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? तो इसका स्केल मतलब है, फैक्टर। इसका मतलब है मेरा बेटा, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये इसका डबल है, ये डबल ऑफ स्केल फैक्टर है। समझ आ गई आपको? जी सर। तो हमने लेंथ तो निकाल ली है 4 सेंटीमीटर, वो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की तो हमने कर दिया। अच्छा, वो कहता है कैलकुलेट एंगल एक्स ए बी। सो एक्स ए बी, तो एक्स ए बी के लिए बेटा एक्स ए बी वाला ट्राइंगल को पहले बाहर निकालो, निकाल के ये नाम तो देने बड़े 3 होगा ना जरूरी। सर? जी बेटा, ये C2X3 होगा। सी टू एक्स कितना होगा? यहाँ जी बिल्कुल 3 होगा, 6 का हाफ, गुड जॉब। अच्छा, एक्स बी इज 6, दैट इज 10, दैट इज 8। ओके, एग्जामिनर कहता है कि एंगल निकालो, और एंगल कौन से निकालो? एक्स ए बी, ये एंगल निकालना है बेटा। स्ट्रेट अवे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो नेम्स देने ज़रूरी होते हैं। आप साइन रूल इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप लगाएंगे साइन ए डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाय 10। 6 वहाँ पे जाएगा खाली, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन 91 आता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इनवर्स लेंगे, तो a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6 बाय 10। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर द एंगल a? 36.9। 36.9 डिग्रीज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? समझ आइए मेरा बच्चा कि नहीं? Yes, अलीना, sir. आमना, सर। फहीम? Yes, सर sir. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लगा सकते थे ना? हाँ, वो एक ही बात है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लगाई है ना मैंने। कौन सा बेटा कोई यहाँ पे कोई उर्दू का फार्मूला लगाया है? इसको रेशियो नहीं बोलते? यस सर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, कहते रहते हो ना, तो साइन थीटा के नीचे भी कुछ लिख दो, 1 लिख दो, तो वो भी तो रेशियो ही हो जाएगा ना। गुगू, सर जी शौक है। फ्री ना हो। ओके, चलें जी, क्वेश्चन देखे जी। क्वेश्चन थोड़ा सा स्केरी है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है? गौर करो। अच्छा जी, ज़रा पहले आराम से तहम्मुल से क्वेश्चन को देख लिया जाए ताकि मुझे भी समझ आए और आपको भी समझ आए। ओके, पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारे पास 2 एंगल्स दिए हैं उन्होंने, और एक यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ये हमारे पास कॉर्नर भी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट तो लेते हैं एटलीस्ट क्वेश्चन का स्टार्ट लेंगे हम इस छोटे ट्राइंगल से। जरा 180 से मैं दोनों माइनस करके बताना क्या आ रहा है भाई? 180 जी 20 होगा सर जी मेरे ख्याल से। 90 बेटा और ख्याल, 20 सर 20 सर जी। 20 है। 20 सर हाँ जी 20 ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे ख्याल के लिए तो नहीं बैठा मैं यहाँ पे। सर ओके, जी मेरा 20 हो जवाब गया, ठीक बोल रहे हैं। ठीक है मैं मानता हूँ ना, क्या करूँ अब? ओके, ये 20 है, तो मेरा बेटा रहमान ये 160 होगा बाहर वाला, जी सर। ये सामने वाला भी 160 होगा, जी सर 360 तो बन ये गया। तो ये भी 20 होगा। यस और नो? यस सर। ओके, अब आराम आराम से जरा पहुंचेंगे उन एंगल्स की तरफ। तो जाते 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 सबर करें थोड़ा सा। ओके, सर जी थोड़ा दो सा मैं, स्टार्स है हमारे पास। बेटा स्टार्स हम मुझे भी नज़र आ रहे हैं लेकिन मैं उन स्टार्स को यूटिलाइज करना नहीं चाहता फिलहाल के लिए। हाँ, मुझे एक चीज़ ये समझ आ रही है। वी आप को फाइंड करने के लिए जी जी बोलें। सर ये आप मैं समझ गया हूँ कि तुम कहने क्या वाली हो, बोलो दोबारा, आराम से बोलो, खैर है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सफिया तुम्हारी सॉरी आवाज़, जी सफिया चैट में लिखो, मैं नहीं बोलूंगा, आप चैट में लिखो, मैं पढ़ना चाहता हूँ आप क्या बोल रहे हो, आपका रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं, मैं चैट देखता हूँ। जहां तक मेरा गैस है, सफिया मुझे ये कहने वाली थी कि सर ये जो T to S, S to P और T सर to बता O दिया। ये बन रहा है। अच्छा सर, V is connected to 2 radiuses, yes V is connected to 2 radiuses but unfortunately we don't have that, so आप वो नहीं कह रही थी जो मैं कहने वाला था। तो बेटा V is also angle at a center and this is angle at a circumference, तो 75 का डबल होने वाला है, तो V is equals to double of 75, so V is equals to 75 times 2 which is equals to 150 डिग्रीज। तो बेटा जूम इन करके मैं यहाँ पे जरा 150 लिखूंगा छोटा सा, क्योंकि जरा बहुत छोटा ट्राइंगल है। अब y निकाल लेंगे, तो 150 + 20 170, तो y 10 होगा, ठीक है?
फाई इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, v इज 150, y इज 10 डिग्री। ओके, अच्छा जी। अब हमें चाहिए x। तो बेटा ये 150 है, तो ये याद रखो कि ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, एंगल एट लाइन। अब ये क्योंकि सेंटर पे बन रहा है, तो ये 2x एंगल किधर, ये हो जाएगा इसका हाफ 15। डबल क्यों कर रहे हो, सरकमफ्रेंस पे हाफ होता है। 30 का नहीं ना डबल सर जी, करके। नहीं ना सर जी, ये तो फिर गलत हो गया ना क्यों? सर। वो तो सरकमफ्रेंस पर सही है सर, लेकिन वो दूसरा तो मिडल मिडल में नहीं है ना, सेंटर में नहीं है ना सर, क्या उसको हाफ कर रहे चुपचा, हैं देखो गोरा बड़ा बोतल। ओके, फिर। इधर देखो, O टू P, O टू Q, Q टू R, Q टू P। अब समझ आइए? बिल्कुल आ गई है सर जी, बिल्कुल समझ आ गई। अगर नहीं आई तो जरा गौर करो, फिर समझाऊं। ये बेटा ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग, सेंटर, एंडिंग, ठीक है। हिट और गो टू स्टार्टिंग। सो दिस एंगल इज सेंटर, दिस एंगल इज सेंटर विच इज 30, सो दिस वुड बी द हाफ ऑफ 30। इस तरीके से देखो, ये 150 है ना, तो ये 150 का हाफ यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं? जी सर, बना हुआ है। तो ये सर ये 15 डिग्री हो। एक जितने होते हैं, कभी हाफ हो जाते हैं, ये कैसे? क्या चीज? कभी एक जितने होते हैं, कभी हाफ हो जाते हैं। चलो अभी गौर करो भाई इधर, यहाँ पे जब इतने बहुत सारे तो सवाल आ क्यों जाए ना, आया तो ना, फिर मैं, तो 30 होगा। चुपचा अभी जरा देखो इधर। जी, समझ आ रही है बेटा? ये ए बी लिखता हूँ मैं नाम, ठीक है ये तो भाई। आती है सर जी। ये यहाँ पे मैंने हिट किया, मैं डाउन आ गया। यस सर। ये तो बच्चों वाला सीन हो गया कि ये है बेटा 2x, तो ये होगा x। एग्री और नॉट? आते हैं सर। चलो अब देखो भाई, हो गया। यस सर। बेटा वही बला है जो ऊपर मैंने बनाई है, खाली हिट यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई मसला है? नो सर। तो ये डबल होगा, तो ये हाफ होगा, क्लियर है। यस सर। और यही बला मैंने यहाँ पे शेड की हुई है, समझ आई है कि नहीं, ये नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर। सर जी और ये बी ऊपर वो पर आप जो वो सर्कल बनाए उसको जरा जूम करें। बी पे, जरा आप ये वो सपना सर्कल। ये वाला। हाँ सर। हाँ, ये अभी बी पर क्या कौन सा एंगल आएगा? ये भी टू बी, एक्स होगा। बेटा बी पे बला जाए, बी के साथ हमारा काम नहीं है। जी ये सर। थ्योरम बी के लिए नहीं है, ये खाली सरकमफ्रेंस के एंगल के साथ है। ओके सर। अभी देखो यहाँ पे एक और ट्रिक बता देता हूँ, फिर ना कहना कि सर बताया नहीं है। जी सर। इधर देख, ये हिट किया मैंने यहाँ पे, जी सर। तो ये अगर y है तो ऊपर सेंटर के सामने जो ये वाला एंगल है ये डबल होगा, फिर समझ आइए। यस सर। हाँ, ये चीज याद रखो। ओहो हो यार। ओके जी, समझ आइए बेटा सबको? जी सर, जी आ सर। गई है। माशाल्लाह, 1 घंटा हवा में गुजर के समझ नहीं पड़ी। सर ओके जी मैं ऑनलाइन हुआ हूँ ना। बेटा देखो, टू कंटेनर्स आर मैथमेटिकली सिमिलर। द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द सर जी कंटेनर, डब्ल्यू रह सरफेस गया। एरिया ऑफ द कंटेनर। ये बेटा डब्ल्यू का आंसर नहीं निकाला हमने। ओके, डब्ल्यू का आंसर नहीं निकाला भाई, डब्ल्यू का आंसर निकालना जरूरी है। चलें जी, डब्ल्यू का आंसर निकाल लेते हैं भाई। वो अभी सफिया आपके लिए बात मान लेंगे, अच्छा हम लोग। ओ टू टी, ओ टू पी, ये टी हो गया, ये पी हो गया। तो ये सफिया ने कहा था कि सर ओ टू टी भी रेडियस है और ओ टू पी भी रेडियस है। तो मेरा बेटा ये 160 आ रहा था मेरा ख्याल से, कितना आ रहा था, नहीं ये 150 है, कितना है, 150 है। तो क्या ये 15 15 ईच होगा? बेटा समझ आई? नो सर। बेटा ये 180 माइनस 150 करो तो 30 आता है, 30 डिवाइड बाई 2 करो 15 आता है कि नहीं? जी यस सर। सर। और देखो यहाँ पे देखो जरा, एक और चीज बताऊं कि डब्ल्यू भी 15 है और वहां पे कॉर्नर में भी 15 लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? जी सर। ये देखो, ये 15 है और ये भी 15 नजर आ रहा है कि नहीं? जी सर। So that is also angle in the same segment. So W is also 15. Okay, इसमें सेम वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, सेम फार्मूला यूज्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। क्यूब रूट ऑफ v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a2। ये तो तो हो आपको गया था। इसमें वॉल्यूम ऑफ द, ये हो गया नहीं था, ये खुद ट्राई करना। अच्छा जी, मेंसुरेशन वाले दिन पे क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट बेटा, ये सवाल मैंने कल किए हुए हैं, तो ट्राई करिएगा खुद। जी, आसान है कि मुश्किल है? सर जी मुश्किल है।
हमारा क्या हाथी का सर, इतना कोई आसान क्वेश्चन है? ये 270 है तो बेटा नीचे वाला 90 होगा। ये भी x है, ठीक है। ओके, एग्जामिनर क्या कह रहा है? ये 2x है तो ये भी 2x है। एग्जामिनर कहता है कि री द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ सर्कल एंड ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। वी कैन सी द सेक्टर हैज अ सेंटर O, रेडियस x एंड एंगल 270। वी कैन सी द रेक्टेंगल हैज लेंथ 2x। ओके, द टोटल एरिया ऑफ द शेप इज k pi x square centimeter square। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हमें वैल्यू ऑफ k को जो है ना फाइंड आउट करना है कि वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू आ रही है। तो हमें k x स्क्वायर के साथ कोई एक्सप्रेशन जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होगा बेटा 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। आर स्क्वायर इज मींस एक्स स्क्वायर। सो बेटा ये एक याद रख लें, ये एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये 270 डिवाइडेड बाय 360 करें, क्या आता है? जरा सिंप्लीफाई करके बता दो ना। 270 divided by 360 is how much? 3/4. It's 3 by 4 pi x square. Okay. Now area of triangle, area of triangle, which is equals to 1 by 2 product of two sides multiply by sine included. Sine 90 is 1. So it is x square by 2. Now area of rectangle, area of rectangle. अच्छा, रेक्टेंगल की एक साइड 2x गिवन है तो ये कैसे आएगी? ये वाली, ये साइड कैसे आएगी बेटा? सर ये कौन सी सर जी? ये वाली साइड रेक्टेंगल की, मुझे ये साइड चाहिए ना ब्रेथ, ये कैसे आएगी? ये राइट एंगल सर ट्राइंगल है वो नीचे सर वाली जी ढूंढ। तो ये हम निकालेंगे पैथागोरस थ्योरम से। ये x है, ये x है तो ये h है। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो 2x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट। हो गया ना, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बेटा ये 2 के साथ क्या करूं फिर मैं? कौन सा 2? चलो बेटे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आता है। जी सर। ये स्क्वायर रूट तो 2 के साथ कट सकता है, पावर के साथ कट सकता है। ये 2 के साथ क्या करेंगे? सर जी वो पावर है ना, वो 2x स्क्वायर है ना। तो 2x, ये देखो जरा, ये बेवकूफ, 2x स्क्वायर के ऊपर मैं स्क्वायर रूट लगाऊं तो ये काट सकता हूं मैं? जी सर। हाथी सर, ये 2 के ऊपर भी है तो ये आंसर होगा स्क्वायर रूट 2 अच्छा एक्स। सर। इस तरह लिखोगे फिर, हाँ 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 हाँ, समझ आ गई सर, समझ आ गई। ठीक है। इंशाल्लाह ये बेइज्जती याद रहेगी ना तो इंशाल्लाह पेपर में भी तुम इस तरह की चवल नहीं मारोगे। एरिया ऑफ टोटल, तो टोटल बेटा क्या आएगा? टोटल वो कहता है कि इन सबको मिला के कुछ ऐसा आता है। तो 3/4 पाई एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल है बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, फिर क्या है? इज इक्वल्स टू, अब ये 2x इंटू स्क्वायर रूट 2 तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स। ये इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तुम्हारी मैं बात मान लेता हूँ, ये वाली बात मान लेता हूँ मैं तुम्हारी। 2x, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे आएगा x, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस होगा इसके साथ जी। तो क्या एक्स स्क्वायर कॉमन है बेटा? कैन आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन? जी आओ जी इसलिए सर जी सर। एक मिनट, एक बच्चे किसका सवाल है? ये रिबान क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा सर जी, मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं। ओके, अब एक्स स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। सो बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो अंदर आ जाएगा 3/4 पाई प्लस 1/2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। बेटा बेटा इधर कैलकुलेटर में डालो यार, ये सारा क्या आता है देखो जरा, ये ब्रैकेट क्या आती है कैलकुलेटर में डाल के बताओ। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे एक नंबर आएगा और वो की है। अलीना आप बता दें बेटा, ये क्या आएगा आंसर? सर 5.68। 5 पॉइंट, बेटा फ्रैक्शन नहीं बता सकते तुम? सर फ्रैक्शन नहीं है। 5.68। 68। 5.68। अच्छा एक बार मेरा बच्चा एक बात सुने, मैं जरा ये स्टार लगाता हूँ। ये ऊपर पेपर नंबर लिखा है, जरा इस क्वेश्चन को जरा चेक कीजिएगा कि मैंने ठीक किया कि नहीं। तो आंसर पॉइंट में आ रहा था ना, इसलिए मुझे जरा थोड़ा डाउट है इस पे। अभी मैं इतना टाइम नहीं है कि देख सकें, ठीक है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द टोटल एरिया इज 110।
x की वैल्यू फाइंड करो जबकि टोटल एरिया 110 आ जाए, तो इसका मतलब ये है 5.68 x स्क्वायर इज इक्वल टू 110। सो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5.68 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो बेटा बताएं x की आंसर क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट 110 डिवाइडेड बाय 5.68 4.4 क्या आ रहा है 4.4 एग्जैक्ट? 4.007 4 007 तो बेटा ये आंसर में बहुत फर्क 4.4007 सॉरी 4.4007, तो ये आएगा बेटा 4.40। 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखूंगा, ठीक है? यस ओके तो बेटा ये ट्राई कीजिएगा, स्टार बना हुआ है, ठीक है? इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्टार है तो ये 32 है, तो ये भी 32 होगा, ये भी 32 होगा। ट्रिक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन है। ऑक्टागन इज 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 8, तो ये टोटल इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? टोटल इंटीरियर एंगल कितना आया आपके पास, जरा माइनस कर लें पहले। 6 मल्टीप्लाई बाय 180 करके 8 n माइनस 2 होता है ना, तो 6 तो मल्टीप्लाई ये बाय 6 180 कहाँ से है? बेटा 8 n माइनस 2 होता है ना ये, हाँ हाँ तो 8 माइनस 2 करो तो 6 आएगा ना गधा। जी सर 6 तो 6 इंटू 180 इज हाउ मच? 1040। यस, यस तो 1040 में से बेटा 32 4 दफा है, तो 32 32 32 32 128, 1040 माइनस 128, ये कितना आ रहे हैं जी? कितने आ रहे हैं बेटा? 912 मेरे ख्याल 912 912। अब 912 1 2 3 जा सकते हैं बेटा आप लोग। 912 डिवाइडेड बाय 4, 912 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? जो बंदा चला गया मैं करता हूँ जी 912 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? 228 200 28 228। तो जब ये बेटा 228 होगा तो x होगा 360 माइनस 228, तो कितना आता है एंगल एट अ पॉइंट? कितना आ रहा है? 132 132 डिग्रीज। अंडरस्टूड? सही बोल रहे अब सर देखो बेटा, हाँ देखो अब ये भी सेम क्वेश्चन है, ये क्या होगा 2y होगा ना, क्योंकि ये नीचे y है, समझ आइए? नाउ 2y प्लस 2y माइनस 60 इज इक्वल टू 360, y का आंसर निकाल लेना, ठीक है? गॉट इट? जी सर ओके ये बेरिंग वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ करा दूंगा, ठीक है? तो ट्राई कीजिएगा बेटा, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, मैं एक वर्कशीट भेजने वाला हूँ आपको ये वाली, इस पर ट्राई करें, अच्छा सा एफर्ट करें, ताकि आप लोगों का जो है ना प्रोसेस सेट हो, ठीक है? सारे बंदे बगैर इजाजत के चले गए नहीं नहीं बेटा, इनकी क्लास है दूसरी, ये इनकी दूसरी क्लास है अभी, तो इसलिए जा रहे हैं, मुझे पता है उनकी 8 बजे स्टार्ट होनी थी, 8:03 हो गए हैं। जी सर